بنگلہ دیش کو آؤٹ کرنے کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے یک طرفہ فیصلے نے ٹی20 ورلڈ کپ کو متنازع بنا دیا۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کی مکمل حمایت، زیادتی پر اپنا موقف دیں گے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان۔ میں نے آئی سی سی کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے۔ ہم آئی سی سی سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی۔ ہم آئی سی سی نہیں، حکومت پاکستان کے پابند ہیں۔ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں، حتمی فیصلے کے لیے ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے اور وہ پھر اسی موقف پہ رہے گا۔ ایک ملک کسی دوسرے ملک کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، پاکستان کے پاس پلان تیار ہے۔ 10 مئی کو بھی ایک فیصلہ کیا تھا، پھر اس کے بعد نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہوگا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلہ دیش کے جائز خدشات پس پش ڈال کر اسکاٹ لینڈ کو گروپ سی میں متبادل ٹیم کے طور پر شامل کر لیا۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ آئی سی سی نے درخواست مسترد کر دی۔ ہماری ٹیم کے لیے بھارت جانا بالکل محفوظ نہیں، بنگلہ دیش کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹس پر ویزا ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری سے صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف کی ملاقات۔ افریقی ملکوں خصوصاً صومالیہ سے تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں انسداد منشیات میں تعاون پر بات چیت۔ نادرا کی جانب سے صومالیہ کو شناختی نظام اور پولیس ٹریننگ میں معاونت کی پیشکش۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی رابطہ، علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کا جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں ایران کے لیے پاکستانی موقف پر اظہار تشکر۔ عباس عراقچی کا وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا برادرانہ تعلقات اور اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دبئی میں ابوظہبی محکمہ خزانہ کے چیئرمین جاسم محمد بو عطابہ سے ملاقات۔ دو طرفہ سرمایہ کاری بڑھانے اور تجارتی روابط کو وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ کوئٹہ میں پارہ -7 ڈگری تک گر گیا۔ وادی نیلم، جہلم اور پونچھ کے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے۔ شدید برفباری سے بجلی اور مواصلات کا نظام متاثر۔ میران شاہ میں بھی کئی سال بعد برفباری۔ کوہستان میں بھی شدید برفباری سے لوگ گھروں میں محصور۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات میں تمام شاہراہیں ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھلی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں N145 کے علاوہ صوبے بھر میں تمام راستے کلیئر قرار۔ چترال سے روگی تک سڑک یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ مکارڈو سے گرم چشمہ اور گبور تک شاہراہ ٹریفک کے لیے مکمل بحال۔ بلوچستان میں N25 خوجک ٹاپ اور N50 پرکان مہترزئی سے مسلم باغ تک کا راستہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ مری میں برفباری کا سلسلہ 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کے بعد تھم گیا۔ مال روڈ پر سیاحوں کا رش دن بھر خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تمام مرکزی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بحال۔ رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے متعلقہ محکمے بھرپور انداز میں سرگرم۔
गलियात, कागान, नारान में 3 से 4 फुट तक बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गलियात के मुख्तलिफ देहात की राब्ता सड़कें भी बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुतअद्दिद अहम शराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बलूचिस्तान में मगरिब से बनने वाले सिस्टम के ज़ेरे असर कल से शिमाली, वस्ती और जनूबी अजला में शदीद बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, तोबा काकड़ी और तोबा जगजई में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। कल्लात रीजन में बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कल्लात में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम, जेहलम और पुंछ डिवीजन के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। निजाम जिंदगी मुतासिर। बर्फबारी की वजह से बंद शाहराहों की बहाली का काम जारी। महकमा मौसमियात का आजाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज के दौरान मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और दयामर रस्तोर डिवीजन के अजला में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। बाला इलाकों से राबता मुनक़ता। शाहराह अस्तौर, शाहराह चिलम और शाहराह शोंटर बंद। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारे सड़कों की बहाली के लिए कोशां। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मेरी फौज मेरी मुहाफिज। जंग हो या कुदरती आफात, अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान मोहब्बत का अटूट रिश्ता। पाक फौज के जवान सख्त मौसमी हालात में कौम की खिदमत पर मामूर। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का भरपूर रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 ने मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सवात, कालाम, खुर्रम, मोहम्मद, जोब और मरी में बर्फबारी में फंसे शहरियों और सयाहों की फंसी गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल। कल से मंगल तक मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात, नारान, अस्तौर और स्कदू में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। 26 और 27 जनवरी के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल। गुलबर्ग, लाहौर के इंडिगो टावर में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू 1122 का फौरी रिस्पॉन्स। 275 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कीमती जानों की हिफाजत पर इमदादी इदारों की बरवक्त कारकर्दगी को सराहा। जब तक ऑपरेशन मुकम्मल न हो और हर एक शख्स को बहिफाजत न निकाल लिया जाए, रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे को बिजली के तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसात से पाक करने के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज का जायजा। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का बाइस बन रहे हैं। मरियम नवाज। 27वीं तरमीम में जो चीज़ आई है वो एक खुशाइन बात है कि शायद हम एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो आप लोगों को दे सकें। ये हमें एम्पावर करती है लोकल गवर्नमेंट, ये हमें कमज़ोर नहीं करती। पॉलिसीज पे तसलसल के फुकदान से जमहूरी निज़ाम मुतासर हुआ। कौमी इस्तेहकाम के लिए इदारों को मजबूत बनाना जरूरी है। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। सूबाई सतह पर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। अवाम की फलाह के लिए बल्दियाती निज़ाम मजीद बेहतर बनाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की लाहौर में गुफ्तगू। मुल्क में डिस इन्फॉर्मेशन और नफरत अंगेज मवाद की हौसला शिकनी जरूरी। 2018 में कुछ सियासी गिरोहों ने मजहब कार्ड को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। जदीद दौर में हथियार भी डिजिटल हो चुके। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की इस्लामाबाद में मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टू मरहूम की रहायशगाह अहमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मरहूम के अहलिया और अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। मियां मंजूर भट्टू के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। मियां मंजूर भट्टू एक मंझे हुए सियासतदान और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार रहनुमा थे। मरहूम की सियासी, समाजी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अताउल्लाह तारड़ अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। बीमार एहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पाक बहरिया ने मरबूत मैरीटाइम प्रोटोकॉल्स फौरी तौर पर मुतहर्रिक करते हुए पेशावराना महारत से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। श्रीलंकन हुकाम और मुतल्लिका एहलकार के अहल खाना का बरवक्त इक़दाम और ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अफगान तालिबान रजीम का नाम नेहाद दस्तूर, तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसव्वदा। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ, अक़लियतों के हुकूक की पामारी और आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन की वजह से शदीद तनकीद। अफगान तालिबान रजीम का मुसल्लत करदा नाम नेहाद आइन जदीद दौर की तबकाती गुलामी का तहरीरी सबूत। दस्तावेज में अफगान माशरे को उलमा, अशराफिया, मुतवसत और निचले तबके में तकसीम किया गया। अफगान जरीदा काबुल नाउ। अफगान महाजरीन यूरोप के लिए सिक्योरिटी रिस्क। स्वीडन का यूरोपीय मुल्कों से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। गैर कानूनी सरगर्मियां और जराइम यूरोपीय मुल्कों के लिए संगीन सिक्योरिटी खतरा। जर्मनी, ईरान और तुर्की के बाद स्वीडन का भी अफगान महाजरीन को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम जारी। जराइम में मुलव्विस अफगान महाजरीन को हर कीमत पर मुल्क बदर किया जाएगा। स्वीडिश वजीर इमिग्रेशन। भारतीय यौम जमहूरिया मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बन गया। निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला तेज। काबिज फोर्सेस के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया। कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की। भारत रियासती दहशतगर्दी के जरिए कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी दबाने में हमेशा की तरह नाकाम रहेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। नाअहल मोदी सरकार की अवाम में खौफ फैलाकर बहरान छुपाने की साजिश बेनकाब। भारत में फिजाई सलामती और कौमी एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार। फैशिस्ट मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए खौफ का खेल। बम धमकियों का सैलाब। एक ही रूट पर बार बार अलर्ट्स ने भारतीय एविएशन की कलई खोल दी। जून का हौलनाक ड्रीम लाइनर हादसा, 240 से ज्यादा हलाकतें। भारतीय एविएशन के लिए स्याहबाब। एयर इंडिया को $1 अरब 60 करोड़ के तारीखी खसारे का सामना। ब्लूमबर्ग का धमाकाखेज इंकिशाफ। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा। यूरोपीय एयरलाइंस की मशरिक वस्ता के लिए परवाजें मुअत्तल। कल तक इजराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं करेंगे। बरतानिया ने भी अपने 4 लड़ाका तैयारे कतर में तैनात कर दिए। परवाजें ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना फौजी तसादुम की वजह से मंसूख की गई हैं। BBC। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद। सदर ट्रंप का बयान खतरनाक और तौहीनामेज है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर। अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। बरतानवी शहजादा हैरी। व्हाइट हाउस ने बरतानवी वज़ीर आज़म की तनकीद मुस्तरद कर दी। और बिग बैश क्रिकेट लीग का चैंपियन कौन बनेगा, फैसला कल पर्थ में होगा। फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स मध्य मुकाबिल। पर्थ स्कॉचर्स 5 मरतबा टाइटल जीत चुकी। सिडनी सिक्सर्स 3 मरतबा चैंपियन रह चुकी है। बिग बैश लीग देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जिंदगी को अपनी लपेट में लेने वाली आग बर वक्त रिस्पॉन्स से जब थम जाए तो जीत जिंदगी की होती है। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का महफूज पंजाब विजन। पंजाब में मॉडर्न फायर रेस्क्यू सिस्टम रेस्क्यू 1122 का एजाज। जनूबी एशिया की पहली अक़वाम मुत्तहिदा इंसराग सर्टिफाइड टीम। एनक्रोचमेंट फ्री रोड्स, फौरी रिस्पॉन्स में मावन। सूबा भर की हाई राइज बिल्डिंग्स में पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 पर सख्ती से अमल दरामद जारी। हर 100 फुट के बाद एक हंगामी इखराज। बैरूनी और अंदरूनी फायर हाइड्रेंट्स और स्प्रिंकलर सिस्टम। बाकायदगी से फायर ड्रिल। बिल्डिंग्स एनक्रोचमेंट से मुकम्मल पाक। आग बुझाने वाले आलात, फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम की तनसीब लाजमी करार। पहली बार पंजाब की 2200 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स का सर्वे और बिल्डिंग सेफ्टी इंतजाम की बुनियाद पर बिल्डिंग्स की A, B, C और D में कैटेगराइजेशन। गैर महफूज बिल्डिंग्स के मालिकान के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। अमल दरामद न करने की सूरत में इमारत की सीलिंग और मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। अब तक 2,80,000 से ज्यादा आग के सानहात में फौरी रिस्पॉन्स। पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत 768 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के नुकसानात की बचत। जिला सतह के बाद तमाम तहसीलों में भी फायर रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी। 892 एम्बुलेंसेज, 281 फायर व्हीकल्स और 74 रेस्क्यू व्हीकल्स। फौरी रिस्पॉन्स के लिए हमा वक्त तैयार। हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 पंजाब अवाम के हमेशा साथ। महकमा इमरजेंसी सर्विसेज, हुकूमत पंजाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यकतरफा फैसले ने T20 वर्ल्ड कप को मुतनाज़ बना दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश के जायज खदशात पसे पुश डालकर इसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। आईसीसी एलामिया के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में मुतबादिल टीम के तौर पर रखा गया है। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया था। जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने IPL की नशरियात पर भी पाबंदी लगा रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 2 टोक मौक़िफ़ है कि टीम के लिए भारत जाना महफूज नहीं, खिलाड़ियों को भारत न भेजने का फैसला हुकूमत का है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के मुतनाज़ फैसले पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि हम ICC नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के पाबंद हैं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, इसका फैसला हुकूमत करेगी। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद सुफियान। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। अगर इजाजत मिली तो शिरकत करेंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम ICC से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पाबंद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आएँ, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। चेयरमैन PCB ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती की गई है। एक मुल्क सबको डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC इजलास में कहा था कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है,
اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں. ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, اور اگر یہ ڈکٹیشن کی کوشش ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا موقف ہے اور وہ پھر اسی موقف پہ رہے گا. چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بنگلہ دیش بڑا سٹیک ہولڈر ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب آئی سی سی کے ممبرز کا ہے. محمد سفیان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. موسم کا احوال شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے اتوار سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی. اتوار کی شب نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا جہاں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع بشمول کوئٹہ, زیارت, چمن, پشین, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, نوشکی, ہرنائی, یوب, قلات, بارکھان, سبی, تربت, گوادر, جوانی, کیچ, آوران, پنجگور, خزدار, واشق اور خاران میں تیز ہوائیں گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے. اسی دوران بالائی سندھ, سکھر, لاڑکانہ, جیکب آباد, دادو میں بھی بارش متوقع ہے. 26 اور 27 جنوری کو اسلام آباد, راولپنڈی, گلگت بلتستان, کشمیر, بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کی توقع ہے. چند مقامات پر شدید برفباری کا امکان بھی ہے, خصوصاً چترال, دیر, سوات, کالام, شانگلہ, کوہستان, مانسہرہ, ایبٹ آباد, مری, گلیات, وادی نیلم, باغ, حویلی اور راولہ کوٹ. بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں اور مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے. خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بارشوں اور برفباری کا نیا سلسلہ منگل تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک ہونے والی بارشوں اور برفباری کے باعث مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تفصیل سے آگاہ کریں گے عدنان شاہ. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور شدید برفباری کے نتیجے میں برفانی تودے گرنے، لینڈ سلائیڈنگ اور گھروں کی چھتیں منہدم ہونے کے مختلف واقعات پیش آئے، جن میں 9 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہوا ہے. جاں بحق افراد میں 7 بچے، 1 مرد اور 1 خاتون شامل ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 5 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. یہ واقعات اپر اور لوئر چترال، مالاکنڈ، شانگلہ اور خیبر کے اضلاع میں پیش آئے. بارشوں اور شدید برفباری کے باعث بند ہونے والی صوبے کی بیشتر شاہراہوں کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ چند بالائی علاقوں میں باقی ماندہ بند شاہراہوں کو کھولنے کے لیے مشینری کام کر رہی ہے. پی ڈی ایم اے ریسکیو 1122 اور متعلقہ ادارے باہمی رابطے میں ہے اور امدادی سرگرمیاں جاری ہے. تمام اضلاع کو متاثرین کو جلد از جلد امدادی سامان فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. امدادی سامان پہلی ہی تمام اضلاع کو فراہم کیا جا چکا ہے، جس میں سردیوں سے بچاؤ کے خیمے، کمبل، بسترے، میٹریسز، کچن سیٹس اور دیگر بنیادی ضروریات کی اشیاء شامل ہے. پی ڈی ایم اے نے متاثرہ ضلع چترال لوئر کی انتظامیہ کو جاں بحق افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بالائی اضلاع میں بارشوں اور برفباری کا نیا سلسلہ منگل تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ بلا ضرورت سفر سے گریز کریں، حساس سیاحتی مقامات کا رخ نہ کریں اور حکومتی اداروں کی جانب سے جاری کردہ الرٹس اور ایڈوائزری پر عمل کریں. عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. مغرب سے بننے والے سسٹم کے ذریعے اثر اتوار سے بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری جبکہ وسطی اور جنوبی اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے اور بارش کی توقع ہے. تفصیلی رپورٹ کوئٹہ سے وقار احمد سے. بلوچستان میں بھی مغرب سے بننے والے سسٹم کے زیر اثر اتوار کی رات سے کوئٹہ، کلات، زیارت، قلعہ سیف اللہ، توبہ کاکڑی اور توبہ اچکزئی میں برفباری جبکہ نوشکے، ہرنائی، یوب، سبی، لورلائے، گوادر، تربت، جیونی، چاغی اور آوران میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے. میٹ آفس ایڈوائزری کے مطابق بارش کے نئے سپیل میں مکران زون میں کیچ تربت، کوسٹل بیلٹ پر گوادر اور جیونی، رخشان ڈویژن میں چاغی جبکہ کلات ریجن میں آوران میں برساتی ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی اندیشہ ہے. شہری محتاط رہیں. 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان میں سب سے سرد زیارت رہا. زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -5 اور زیادہ سے زیادہ -14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. کلات میں ٹیمپریچر -11، کوئٹہ اور مسلم باغ -7، پشین -6، چمن -5، یوب -3، نوشکے، دالبندین اور لورلائی -2 جبکہ پنجگور میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا. برف باری اور بارش کے متوقع اسپیل کے پیش نظر
PDMA, NHA और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अलर्ट हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। बल्तिस्तान रीजन, जिला स्तोर, जिला गजर, जिला हुंजा, जिला नगर समेत दीगर अजला के बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुकने के बाद रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान के लिए सड़क हर किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को 26 जनवरी तक शाहराह कराकोरम पर गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। उधर आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, ताहम बर्फबारी के बाद बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। बारिशों और बर्फबारी के बाद वादी नीलम, जहलम और पुंछ ट्वीन के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। इन इलाकों में अब भी कई फुट बर्फ मौजूद है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। बिजली और टेली मवासलात का निज़ाम मुतासर है। बर्फबारी की वजह से बंद शहरात की बहाली का काम तेजी से जारी है। जिला हवेली में 45 जबकि मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके पीरचनासी में बर्फानी तूफान की जद में आकर फंस जाने वाले 150 से ज्यादा मकामी अफराद और सयाहों को रेस्क्यू 1122 की जानिब से बाहिफाजत रेस्क्यू करके इनके घरों को रवाना कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा एदाद और शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से 6 मकानात मुतासर हुए। मशीर बराए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर अहमद सगीर ने रवां हफ्ते के दौरान आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों और बर्फबारी के इम्कान के पेश नज़र एक मरतबा फिर शहरियों बिलखुसूस सयाहों को बारिशों और बर्फबारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की है। क्योंकि स्नोफॉल का सिलसिला जारी है और जो हमारी एडवाइजरी है उसके मुताबिक अगले 24 घंटों में भी दोबारा से ये स्पेल एक दफ़ा फिर आएगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने टूरिस्ट हज़रात से और लोकली भी जिन लोगों ने यहाँ पर सफ़र करना है तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग नेचर को ज़रूर इंजॉय करें, नेचर को देखें, मगर जो हमारी तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई भी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी मूवमेंट करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज के दौरान मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मरी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का भरपूर रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के जवान सख्त मौसमी हालात में कौम की खिदमत पर मामूर हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 का कामयाब मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर महसूर 77 शहरियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सवात, कालाम, कुरम, मोहम्मद, योब और मरी में बर्फबारी में फंसे शहरियों और सयाहों की फंसी गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल की गईं। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गहराइयों से मशहूर और मकबूल है पाक फौज का। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों में आपको आगाह करें। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा की शर्त खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ईवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सोमालिया की वजारत खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के मुस्तकिल सेक्रेटरी हमजा अदन और पाकिस्तान वजारत दाखिला और इंसदाद बनशियात के खुसूसी सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफ्रीका आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक अहम खिता है और पाकिस्तान सोमालिया समेत अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है। मुलाकात में वसी तर जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और दो तरफा ताउन के मौके पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान सोमालिया के साथ रवाबित को कदर की निगाह से देखता है और मुश्तरका मफादात के शोबों में करीबी ताउन का हामी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान सरहद पार जराइम और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों के लिए पुराज़िम है। सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ ने सोमालिया के सदर की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के नाम एक खत भी पेश किया, जिसमें नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दो तरफा गहरे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने डेवोस में होने वाली मुलाकात के बाद की सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरान के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। अब्बास इराक़ची ने ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और वोटिंग के इक़दाम को सराहा। अब्बास इराक़ची ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अबू ज़बी के महकमे खजाना के चेयरमैन जासिम मोहम्मद बुअताबा ज़ाबी के दरमियान मुलाकात में दो तरफा सरमायाकारी बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत और माशी तावन के शोबों में मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में इत्तसालात की पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी और तवसी मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मनसूबों, सरमायाकारी और नए तिजारती मौके तलाश करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पॉलिसीज़ में तसलसल के फुकदान से जमहूरी निज़ाम मुतासिर हुआ। कौमी इस्तेहकाम के लिए इदारों को मजबूत बनाना जरूरी है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ज़मीनी जंगों के साथ अब नई जंग इंफॉर्मेशन डोमेन में लड़ी जा रही है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर कलासरा। लाहौर के अलहमरा हाल में थिंक फेस्ट 2026 में पैनल डिस्कशन डेवोल्यूशन फॉर रेवोल्यूशन से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मजबूत रियासतों की बुनियाद इदारों के तसलसल से बनती है। सबको आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक दिहाई में जमहूरी अमल को शदीद चैलेंजेस का सामना है। अवामी मफादात को सियासी तरजीहात पर फोकियत न मिल सकी। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुस्तहकम जमहूरियत ही मुल्क की तरक्की की जमानत है। 27वीं तरमीम में जो चीज़ आई है वो एक खुशाइन बात है कि शायद हम एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो आप लोगों को दे सकें। ये हमें एम्पावर करती है लोकल गवर्नमेंट, ये हमें डिसएम्पावर नहीं करती, ये हमें कमजोर नहीं करती कि कल पॉलिटिकल जो टर्फ है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स को यही लोग जो है डिफेंड करेंगे। तो ये एक मसला है, अगर हम इसको हल कर सकें तो जमहूरियत जो है वो पनप सकेगी, मजबूत होगी, हमारी फेडरेशन मजबूत होगी। एक और मुज़ाकरे से खिताब करते हुए मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मौक़ों के साथ बहुत से मसाइल ने भी जन्म लिया। जहाँ डिजिटाइजेशन इम्पोर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी भी उसी तरह इम्पोर्टेंट हो गई है। जिस तरह किसी मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत जरूरी है या थी, उसी लिहाज से उस मुल्क की जो डिजिटल और साइबर हदें हैं उनके अंदर भी जो उसकी हिफाजत है वो एक अहम चीज हो चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जमहूरी निज़ाम का तसलसल मुल्क की इस्तेकाम का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि कौमी मसाइल के हल के लिए सियासी हमआहंगी को फरोग इंतहाई जरूरी है। टैक्स नेट के हवाले से मुज़ाकरे से खिताब करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट में इजाफा नागजीर है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो पॉलिसी इख्तियार की है। इस ज़मन में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फूल प्रूफ बनाया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत के मौसर इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। नैतली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं और बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लाहौर में उनकी रिहाइशगाह गए। उन्होंने मियां मंजूर वट्टू मरहूम की अहलिया और दीगर अहल खाना से दिली दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तार ने कहा कि मियां मंजूर वट्टू एक मंझे हुए सियासतदान और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार रहनुमा थे। बतौर वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मंजूर वट्टू मरहूम ने रख रखाव और शाइस्तगी पर मबनी सियासत को फरोग दिया और हमेशा बर्दाश्त, रवादारी और जमहूरी इक़दार के दायरे में रहते हुए सियासी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उनके दादा साबिक़ सदर मुमलिकत रफ़ीक तारड़ मरहूम और मियां मंजूर वट्टू मरहूम के दरमियान नहायत इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता था।
और अभी आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलबाग में वाक़ इंडिगो टावर में आतिशज़दगी, आग बुझाने के जदीद निज़ाम और मुतल्लिका इदारों की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत आग पर फौरी तौर पर काबू पाकर 275 से ज़ायद अफराद की जिंदगियां बचा ली गईं। हादसे में 3 अफराद झुलसकर जाम बहक हुए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। मजीद बताएंगे नवीद हयात। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़ निजी टावर में दोपहर 12:30 बजे आग लगने का वाक़या हुआ। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 का अमला मौके पर पहुंच गया और पेशावराना महारत, बहादुरी और जदीद हाइड्रेंट्स की मदद से सिर्फ 3 घंटों के अंदर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमले ने टावर में मौजूद 275 से जायद अफराद को बाहिफाजत निकाल कर बड़ा जानी नुकसान होने से बचाया। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 के 80 से जायद एहलकारों और अफसरान ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस वक्त फायर कंट्रोल हो चुकी है और इस वक्त जो है मैंने खुद पर्सनली तीनों बेसमेंट्स इस वक्त देख कर आया हूँ और उसके अंदर जो है वो फायर अब कंट्रोल्ड है। तो थोड़ी बहुत ही कूलिंग कहीं पे है या वहाँ पे जो है वो साथ साथ हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वाक़े की इत्तला मिलते ही सूबे की इंतजामिया को फौरी मुतहरिक किया और उनकी हिदायत पर सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए तमाम वक्त मौका पर मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी कार्रवाई पर रेस्क्यू टीमों को सराहते हुए कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े में कीमती इंसानी जानों का बच जाना महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ये सेफ पंजाब विजन और फ़आल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आग पर बरवक्त काबू पाकर कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े की 8वें रोज़ भी सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी रहा। लापता 82 अफराद में से 71 अफराद की लाशें मिल गई हैं। लाशों में से 22 अफराद की शनाख्त की गई है। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का सिलसिला जारी है। बिल्डिंग कमजोर होने के सबब इसके गिरने का खतरा है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एहतियात बरती जा रही है। हुकूमत सिंध ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया है। मुतासरा ताजरों को फी दुकान 5 लाख रुपए फौरी रिलीफ और 1 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने ताजरों को मुतबादिल रोजगार के लिए 2 माह में 850 दुकानें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: लह कलात -11, अस्तोर -9, कलाम पाड़ा चिनार -8, कोयटा -7, मालम जब्बा -6, गोपिस दीर -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही: इस्लामाबाद 0, लाहौर 3, कराची 8, पेशावर 3, कोयटा -3, मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, गिलगित में -1, स्कर्दू -4, मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि श्रीनगर में -1। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से साबिक निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने लाहौर में मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इब्राहिम हसन मुराद ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मयारी फ़नी तालीम से जुड़ा है। नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करना मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नहायत अहम है। और भारत का यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी, ये तमाम दिन कश्मीरियों के लिए मज़ीद तकालीफ और मुश्किलात का सबब बनते हैं। काबिज़ फोर्सेस ने 26 जनवरी को मनाए जाने वाले भारतीय यौम जमहूरिया तकरीबात की हिफाजत की आड़ में निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके लावेपुरा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके तलाशी की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। फोर्सेस एहलकारों ने घरों पर छापों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को सख्त हिरासत किया और कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की। मकबूजा वादी कश्मीर के दीगर कई इलाकों में भी तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय पुलिस लोगों को थानों में तलब करके उन्हें हिरासा कर रही है और यौम जमहूरिया की नाम नहाद तकरीबात में शिरकत के लिए दबाव डाल रही है।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल-रशीद मिन्हास ने मुहासरे और तलाशी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। उन्होंने कहा कि भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए यौम स्याह है। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी के जरिए कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी दबाने में नाकाम रहा। आज़ादी पसंद तंजीमों डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और तहरीक वहदत इस्लामी ने अपने बयानात में कहा कि भारत ने कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत फौजी ताकत के बल पर सल्ब कर रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की शनाख्त छीनने और इन्हें अपने ही वतन में अजनबी बनाने के मजमून मंसूबे पर अमल पैरा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इलाके में सहाफ़ियों की इज्जत और वक़ार को ठेस पहुँचाई जा रही है। सीनियर सहाफ़ियों को थानों में तलब करके हिरासत किया जा रहा है, जबकि उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कायम हुकूमत इस पर खामोश है। अफगान तालिबान का नाम निहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसव्वदा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ, मजहबी अक़लियतों के हुकूक की पामाली और आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन ने अफगानिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार निज़ाम की बुनियाद मजहब की मनपसंद और मस्शुदा तशरीह पर रखी गई है। अफगान तालिबान के मंजर आम पर आने वाले नाम निहाद आईनी दस्तूर के मंदराज पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया गया है। मंजर आम पर आने वाली दस्तावेज के मुताबिक हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के नाम निहाद आइन ने अफगान माशरे को मुख्तलिफ तबकात में बांट दिया है। अफगान जरीदा काबुल नाउ के मुताबिक दस्तावेज में अफगान अवाम को उलमा, अशराफिया, मुतवसत और निचले तबके के ज़ुमरों में तकसीम किया गया। ये ज़ाब्ता 3 हिस्सों, 10 अबवाब और 119 शिकों पर मुश्तमिल है। इस दस्तावेजी ज़ाब्ते में बागियों को नाकाबिले इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज़ की राह हमवार की गई है। मुनसिफाना ट्रायल से मुतालिक दीगर बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाब्ते में शामिल नहीं हैं। दस्तावेज में जिस्मानी सजाओं में नुमाया इजाफा और तालिबान पर तनकीद को काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। अफगान नशरियाती इदारा आमू टीवी के मुताबिक तालिबान क़यादत की तौहीन पर 20 कोड़े और 6 माह कैद, जबकि फ़िक़्ह हनफी तर्क करने पर 2 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। आलमी रद्द-ए-अमल के मुताबिक अफगान तालिबान का यह आइन इस्लामी उसूलों और इंसानी इक़दार से हरगिज़ मुताबिकत नहीं रखता। इंसानी हुकूक की तंजीम रवादारी के मुताबिक मावरा अदालत कत्ल, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के दायरा जाती खतरात बढ़ गए हैं। दस्तावेज जाहिर करती है कि अफगान अशराफिया को अदालती इस्तिस्ना हासिल है, जबकि गरीब तबका बदतरीन जाबर का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक मुबैना आइनी मुसव्वदा तबकाती तकसीम, समाजी इंसाफ की सरी नफ़ी और इंसानी मसावात पर खुला हमला है। माहिरीन ने अफगान तबकाती निज़ाम को हिंदू ज़ात पात से मुमासिल करार दिया, जहाँ निचला तबका अमलन अछूत बना दिया गया है। अशराफिया, रूहानी और बसर तबका, मुतवसत और निचला तबका जो बिल्कुल हिंदू ज़ात पात के निज़ाम से मुशाबे महसूस होता है। इस नाम निहाद आइनी दस्तावेज पर भारतीय हिंदुत्व नजरिए की छाप वाज़े नजर आती है। तालिबान का नाम निहाद आइन मुनज़्ज़म, इम्तियाज़, नाइंसाफ़ी और रियासती जबर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस तबकाती जबर के बायस अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। अफगान तालिबान ने ख़वातीन की तालीम, आज़ादी और वक़ार पर पाबंदियाँ लगाकर कम उम्र लड़कियों की शादी को जायज़ करार दे दिया। ये आमरीत अफगानिस्तान को कुरान वस्ता की तारीकी और गैर मुस्तहकम रियासत में धकेल रही है। गैर तरबियत याफ्ता तालिबान एहलकार खुद साख्ता कवानीन नाफिज करके रियासती निज़ाम की जगह अपनी अदालतें कायम कर रहे हैं। तालिबान के इख्तलाफात और बाज़ एहलकारों की दाइश में शमूलियत खित्ते के लिए शदीद खतरा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी जारी है। खान यूनिस में इसराइली फायरिंग के नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहरी जाम बहक, जबकि दीगर अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों को इसराइली फ़िज़ाई और तोपखाने के हमलों का निशाना बनाया गया। शुमाली गाज़ा की पट्टी में बैतुल्लाहिया के मगरबी इलाके अल-सलातीन में भी इसराइली फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। गाज़ा की पट्टी में अक्टूबर के महीने में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 1300 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें 1820 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक या जख्मी हुए हैं। सरमायाकारी बोर्ड के विफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और बरामदात के अहदाफ का हुसूल नागुज़ीर है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी को असर नौफाल और रीस्ट्रक्चर किया गया है। डायनेमिक लीडरशिप जो है हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इंस्ट्रक्शन पे, उनके डायरेक्शन पे जो हम काम कर रहे हैं सारा एज अ टीम, और सब मिलजुल के पाकिस्तान को एक नई सिमत मिल रही है। और वकील इमाम ज़ैनब हाजिर मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में अदालत ने मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी है।
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج افضل بجوکا نے کمرہ عدالت میں مختصر فیصلہ سنایا۔ 22 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے کے مطابق دونوں ملزمان کو پیکا ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت 5 سال قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ، سیکشن 10 کے تحت 10 سال قید، 3 کروڑ روپے جرمانہ اور سیکشن 26A کے تحت 2 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہیں۔ دونوں ملزمان پر مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ پیکا سیکشن 11 میں دونوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ میڈ ان پاکستان ایکسپو ملکی صنعت اور برآمدات کے مستقبل کی روشن تصویر ہے۔ لاہور میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس ایم ای کلسٹر شو کیس ایکسپو ایس ایم ایز کو مارکیٹ، سرمایہ کاری اور عالمی خریداروں سے جوڑنے کا پلیٹ فارم ہے۔ Across Pakistan, from Punjab to Sindh, from Khyber Pakhtunkhwa to Balochistan, from Gilgit-Baltistan to AJK and Islamabad, voices have been heard, needs have been addressed, and opportunities unlocked. I have personally met women entrepreneurs in remote areas, honey producers in the mountains, furniture makers in Punjab, surgical instrument exporters in Sialkot, agro processors across the country, and many others. Every conversation has one thing in common: determination, resilience, and an unshakable belief in the future of Pakistan. افواج پاکستان کا گوادر سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس معاون اور تبوک نے انڈونیشیا کے پرچم بردار جہاز ایم وی گرے پام سے بیمار سری لنکن عملے کو ریسکیو کیا۔ بیمار اہلکار کو پی این ایس تبوک پر منتقل کر کے فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ سری لنکن حکام اور متعلقہ اہلکار کے اہل خانہ نے بروقت اقدام اور تعاون پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ پاک بحریہ سمندر میں انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے قومیت سے بالاتر ہو کر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ Today I recover Pakistan Navy Tabuk. Due to my ill, I would like to thanks Captain Tabuk and medical staff for assistance rendered. صدر آصف علی زرداری نے پاک بحریہ کے گوادر سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن کو سراہتے ہوئے پی این ایس معاون اور تبوک کی پیشہ ورانہ مہارت اور فوری اقدام کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاک بحریہ نے سمندر میں انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے قومیت سے بالاتر ہو کر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری فرح ناز اکبر نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی قیادت میں 2028 کے آخر تک 26 ملین سکول سے باہر بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ایمرجنسی کے تحت سکول سے باہر ہر بچے کو تعلیم دینا حکومت کا عزم ہے۔ فرح ناز اکبر نے کہا کہ صوبوں کے تعاون سے تعلیم کے شعبے میں نئی اور جدید اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں بروشری ریسرچ اکیڈمی اور شان تجلی کے اشتراک سے نکاح عشق کے عنوان سے رنگا رنگ ثقافتی شو پیش کیا گیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل۔ موسیقی اور ثقافتی رنگوں سے بھرپور تقریب میں فنکاروں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ پارلیمانی سیکریٹری فرح ناز اکبر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ریسرچ اکیڈمی اور شان تجلی کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں کراکرم کے نامور فنکاروں نے اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے خوب داد سمیٹی۔ اس کے پیچھے بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم صوفیانہ کلام جس کے اندر مذہب کے اصل روح کو اجاگر کرنا ہے۔ اس میں ایز اے آرٹسٹ ہم نے اپنے پرفارمنس پیش کیے جو کہ آڈینس بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے، اور اسپیشلی اس طرح کے ایونٹس یوتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عالم انسانیت میں امن اور یکجہتی اور ونس ہو۔ یوتھ جو ہے ہماری، ان کو جو اسپرچول ایکٹیویٹیز ہیں، جو صوفیانہ کلام یا اس طرح کی چیزوں میں ان کو انوالو کیا جائے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ شرکا نے ثقافتی ہم آہنگی اور علاقائی ورثے کے فروغ کو بھرپور انداز میں سراہا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق گنگا رام اسپتال گئے اور سبزہ زار لاہور میں پالتو شیر کے حملے سے زخمی ہونے والے بچے کی عیادت کی۔
صوبائی وزیر نے 8 سالہ بچے واجد اس کے والد سے ملاقات کی اور بچے کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے میڈیکل بورڈ کو ہدایت کی کہ زخمی بچے کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ پالتو شیر کے حملے میں 8 سالہ واجد کا ایک بازو ضائع ہو گیا تھا۔ لاہور میں جاری افکار تازہ تھنک فیسٹ میں پنجاب میں سکھ دور حکومت کے 4 عشروں کی تاریخ کے نمایاں اور مخفی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ پنجاب کا خطہ اپنے اندر صدیوں کی تاریخ اور تہذیب کی یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ لندن یونیورسٹی اور سکھ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے لاہور میں افکار تازہ تھنک فیسٹ میں راجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کی یاد تازہ کی گئی اور اس دور کی تاریخی اور نایاب نوادرات کے بارے میں توشہ خانہ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب کی شان و شوکت، تاریخ، ثقافت اور دیگر چیزوں کو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان کے ترجمان مرتضی سولنگی نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 4 دہائیاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت رہی ہے اور جو موجودہ جو پنجاب ہے اس کو ایک کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا تاریخی کردار تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت شاندار کام کیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ اپنے خطے کی تاریخ کے بارے میں سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کے بارے میں تحقیق کر کے چیزوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اپنی ہیریٹیج کو، اپنی ہسٹری کو اون کریں، سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جو رچ کلچرل ہیریٹیج ہے جو کئی ہزار سال پہ محیط ہے اور اس میں ایک چیپٹر سکھ ایرا کا بھی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سکھ کلچر کے حوالے سے جو پریزنٹیشن ہے وہ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ نمائش کو بڑی تعداد میں شہریوں نے دیکھا اور پنجاب کی تاریخ کو محفوظ بنانے کی کاوش کو سراہا۔ توشہ خانہ نمائش کے انعقاد کا مقصد سکھ دور حکومت کی تاریخ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔